السلام علیکم ڈیئر ایڈیٹر اینڈ لسنرس، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ عشق رومانچہ بائی زویا علی شاہ کی ایپیسوڈ نمبر 21 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اور میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناولز، اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، زویا علی شاہ کے چینل پر خوش آمدید۔ میں ہوں ہدا ماجد اور آپ ہیں اس وقت زویا علی شاہ کے سیکنڈ چینل فرکشن فرینزی ناولز پر۔ عشق رومانچہ کی ایپیسوڈ نمبر 43 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسے وہ جانتا ہو کہ اس کی ہر حرکت ہر لمس پر ماہی کے دل میں جذباتوں کے طوفان پیدا کر رہا تھا۔ پورے روم میں ماہی کی سسکیاں اور احمر کی تیز سانسوں کی دھن گونج رہی تھی، جیسے محبت کا ہر لمحہ ان کی روح میں جا کر بس رہا ہو۔ خوبصورت جانچ پہ نظر نائٹی کب سے فرش کی نظر ہو چکی تھی۔ مضبوط بازوؤں میں سمیٹے ہوئے مخملی کمبل میں دونوں وجود ایک ہو چکے تھے۔ دونوں کی قربت میں ایک ایسی شدت تھی کہ ہر گزرتا لمحہ قربت کی شدتوں کو اور بڑھا رہا تھا۔ احمر کی نظریں ماہی کے خوبصورت رعنائیوں پر خماریاں بکھیر رہی تھیں۔ ماہی کی بےقراری اس لمحے کو مزید شدت دے رہی تھی۔ محبت بھرے لمحوں میں ماہی احمر کے جذباتوں میں اس کا پورا ساتھ دے رہا تھا، پورا ساتھ دے رہی تھی۔ محبت کا یہ لمحہ اپنے اختتام پر پہنچ رہا تھا، لیکن ان کے دلوں میں یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا تھا۔ شدتوں سے ٹوٹ کر ماہی احمر کے بازوں میں گہری نیند میں جا چکی تھی۔ احمر پرسکون ہو کر اسے اپنی باہوں میں سمیٹے ہوئے لیٹا تھا اور اس کا خوبصورت معصوم چہرہ دیکھتے ہوئے جیسے وہ لمحہ ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں قید کرنا چاہتا ہو۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، شوہر کی قربت میں یہ احساس سکون ہے جیسے ہر درد و غم کی گزر چکی ہو دھند۔ رومان شاہ اور اس کی چھوٹی سی فیملی عبادت مکمل کرنے کے بعد سعودی عرب کے سیدھا تھائی لینڈ پہنچ گئی تھی۔ رائن کے چہرے پر ایک خاص چمک تھی کیونکہ تھائی لینڈ کی سیر ہمیشہ سے اس کی خواہش رہی تھی۔ رومان شاہ نے اپنے بیٹے کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی عربیہ کے بعد تھائی لینڈ سے اپنے ورلڈ ٹور کا سفر شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایئرپورٹ پر قدم رکھتے ہی رائن کی آنکھوں میں بے پناہ جوش تھا۔ وہ اپنے خوابوں کی تکمیل کو پورا کرتے ہوئے دیکھ کر بہت پرجوش تھا اور چھوٹی چھوٹی آنکھیں اپنے خوابوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ جگمگا رہی تھی۔ رومان شاہ رائن کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ وہ ساتھ ساتھ چلتے ہوئے محبت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ رومان شاہ کی نظریں اس کے چہرے کی مسکراہٹ پر تھی۔ رائن کی ہر ایکٹیویٹی میں اس کی ہر خوشی نظر آ رہی تھی۔ اس کی خوشی رومان شاہ کو سکون دے رہی تھی۔ ایک باپ کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے جب اس کا بچہ خوش ہوتا ہے۔ وہ ہوٹل روم میں پہنچ چکا تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں پہنچتے ہی رائن نے جلدی سے کھڑکی کھول دی تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ کر ایسے ہی خوش ہو رہا تھا جیسے پوری دنیا سمٹ کر اس کے ہاتھوں میں آ گئی ہو۔ وہاں کی رنگین روشنی، بلند عمارتیں اور شاپنگ مال سب ایک نئی دنیا کی طرح لگ رہا تھا۔ بابا، یہ سب ویسا ہی ہے جیسا میں نے ٹی وی پر دیکھا تھا۔ وہ خوشی سے اپنے بابا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ تو صرف شروعات ہے، ابھی تو ٹی وی جیسا اور بہت کچھ دیکھنا ہے۔ رومان شاہ نے مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ رکھ کر بال بکھیر دیے تھے۔ یہ لمحہ ایک باپ اور اس کی محبت اور بیٹی کی خوشی کی عکاسی کر رہا تھا۔ شاہ خود بھی بہت خوش تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کی خواہشات کو حقیقت کا روپ دے کر اپنے بیٹے کی بہت بڑی حسرت کو پورا کیا تھا۔ روم کے اندر ہی ایک چھوٹا سا روم رائن کے لیے بک کروایا گیا تھا۔ یہ روم خاص طور پر کپل اور ان کے ساتھ آنے والے بچوں کے لیے نہایت خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ رائن، تم اپنے روم میں جا کر آرام کرو، ابھی ہم بہت تھکے ہوئے ہیں، اس لیے آرام کریں گے۔ صبح میں تم سب کو گھمانے کے لیے لے کر جاؤں گا۔ شاہ، رائن ہمارے ساتھ سوئے گا، میں اسے الگ روم میں نہیں جانے دوں گی۔ میرا بھی سن کر گھبرا اٹھی تھی کہ رائن کسی الگ روم میں سونے والا ہے، تمہارے بیٹے کو جہاد کے لیے نہیں بھیج رہا۔ جتنا تڑپ اٹھی ہو، روم کے اندر ہی روم ہے، تمہارا بیٹا بالکل سیف ہے۔ اس کی شدید گھبراہٹ کو محسوس کرتے ہوئے رومان شاہ نے گھور کر میرت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ رومان شاہ نے اپنی جان شاہ پر پورے 1 سال سے محبت کی بارش نہیں برسائی تھی۔ وہ ایک سال تک پیرالائز تھے۔ شاہ نے اس کے ٹھیک ہونے کا پورا 1 سال تک انتظار کیا تھا۔ اس سے بڑا ایک مرد کا صبر کیا ہوگا۔ جب میرت پوری طرح سے صحت یاب ہوئی تو شاہ اسے عمرے کے لیے سیدھا سعودی عرب لے آیا تھا۔ وہاں مقدس مقامات پر رومانٹک ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، یہ ایک ناپسندیدہ عمل تھا۔ اب موقع بھی تھا اور دستور بھی۔ شاہ میرت کی قربت کے لیے بہت بےتاب تھا، لیکن میرت تھی کہ اسے اپنے بیٹے کو دور نہیں بھیجنا تھا۔ ایسے میں رومان شاہ
मजबूरन को आंखें दिखानी पड़ी, वरना मीरब के लिए आजकल शाह बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो चुका था। इतना सॉफ्टपन तो इसने इसके नेचर में शामिल नहीं था। मीरब को खोकर शाह ने दोबारा पाया था। नर्म होने की वजह यही थी कि लेकिन शाह, अगर रायन हमारे साथ सो जाए तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तुम्हें अभी समझाता हूँ। थोड़ा सब्र रखो, और रायन बेटा तुम जाकर आराम करो। शाह को मीरब पर सच में गुस्सा आ रहा था। वो इस वक्त मीरब को अपनी दस्तरस में लेने को बेताब था। लेकिन मैं लेकिन मीरब को जरा भी इस बात की फिक्र नहीं थी। मीरब को इस बात की अब सजा मिलने वाली थी जिससे वो बेखबर थी, और वो रोमान शाह था जो अपने जज्बात पर तब तक काबू रखता था जब तक इसका दिल इस बात पर आमादा होता था। शाह की मर्जी से ज्यादा इसके जज्बात पर सब्र करने का कायल इसे कोई नहीं कर सकता था। इस बात की इस बात ये बात इसकी जानिशा बहुत अच्छी तरह से जानती थी, मगर लंबे अरसे से के प्यार और मोहब्बत ने मीरब को बिगाड़ दिया था। बाबा मैं आपके साथ सोऊंगा, राइम ने जिद्दी अंदाज में कहा। ऑल राइट, गो टू स्लीप एंड गेट रेडी फॉर द रिटर्न टुमारो। आई एम नॉट टेकिंग यू आई एम नॉट टेकिंग यू एनीवेयर। ठीक है, सो जाओ और कल वापसी की तैयारी रखना। मैं आप लोगों को कहीं नहीं घुमाने वाला। नो बाबा, आई विल गो टू माई रूम एंड स्लीप। आई वाज जस्ट जोकिंग विद यू। नहीं बाबा, मैं अपने रूम में जाकर सोऊंगा। मैं तो आप सबसे मजाक कर रहा था। मगर बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, और मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। अगर तुम और तुम्हारी माँ ने मिलकर मेरे मूड की ऐसे की तैसे किए, मेरा कहा न माना, तो फिर मुझसे भी रियायत की तवक्को न रखना। रमान शाह ने अपने चेहरे पर संजीदगी की एक लकीर लाते हुए एक आईब्रो उठाया। वो अपने बेटे को, प्यारी बीवी को एक गहरी वार्निंग दे रहा था। इसका अंदाज सख्त मजबूत था। रमान शाह का ये अंदाज बहुत दिनों बाद मीरब को देखने को मिला था। एक तरफ वो मोहब्बत से बात कर रहा था, दूसरी तरफ वो बिल्कुल वाज़ेह था कि वो अपने में किसी किस्म की सरकशी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके अल्फाज में एक ऐसी शिद्दत थी जिससे साफ जाहिर होता था कि वो जो कर रहा है वो इसे पूरा करने के लिए तैयार है। आज मीरब के शाह का अंदाज वही था जिससे मीरब की जान जाती थी। वो जितना मर्जी लाडली हो जाए, मगर रोमान शाह के इस अंदाज से मीरब आज भी घबराती थी। राइम, तुम रफू चक्कर होकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके जा चुका था। राइम के अपने रूम में जाते ही रोमान शाह ने रूम को लॉक कर दिया था, ताकि वो मुकम्मल तौर पर महफूज रहे। राइम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इसके रूम में कैमरे नस्ब किए गए थे, जो रोमान शाह ने फ़ोन से जुड़े हुए थे। इन कैमरों में कनेक्शन रूम में मौजूद एलसीडी स्क्रीन से भी मुंसलिक था। रोमान शाह अपने बेटे के हर अमल पर नजर रखता था, क्योंकि वो इसकी हिफाजत के हवाले से इंतहाई मोहतात था। शाह, आप नाराज हो गए हैं? मीरत के पूछने पर रोमान शाह की जानिब से कोई जवाब नहीं आया था। शाह गुस्से से टांग पर टांग रखे हुए पाँव को मुसलसल हिलाते हुए मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। वो थाईलैंड के खूबसूरत होटल के कमरे में बैठा था, मगर इस वक्त इसके अंदर का गुस्सा इसे माहौल से बेखबर किए हुए था। शाह हल्के ब्राउन कलर के सोफे पर गैर आरामदा अंदाज में बैठा हुआ था। शाह का चेहरा गुस्से से लाल था और मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें गाड़े हुए ऐसे लग रहा था मीरब को नजरअंदाज किया जा रहा हो। रुमान शाह का चेहरा संजीदा था, आंखों में एक गहरी सुर्खी उतर चुकी थी जो उसके गुस्से का इजहार कर रही थी। इसका अंदाज बिल्कुल अटल था, जैसे इसकी तमाम वजह सिर्फ अपने गुस्से पर मरकूज हो। खूबसूरत शाह के चेहरे पर गुस्सा हमेशा की तरह जानलेवा लग रहा था। आयश, इस शख्स का एटीट्यूड और गुस्सा इस कदर जानलेवा था कि देखने वाला इस पर फिदा हुए बगैर नहीं रह सकता। ये दुनिया का शायद वाहिद शख्स होगा जो गुस्से में और भी ज्यादा खूबसूरत और जाज़बे नजर लगता था। मीरब अपने शाह को देखकर सोचे बिना नहीं रह सकी थी। वो दिल में सोचते हुए खुश हो रही थी कि इसका शाह इतना खूबसूरत है। शाह प्लीज मेरी बात का जवाब तो दें, क्या आप नाराज हैं? मीरब ने हिचकिचाते हुए अपनी बात दोहराई थी। क्या अब मेरे दिल की बात तुम्हें अल्फाजों से समझानी पड़ेगी? शाह झुक शाह झटके से अपनी अपनी जगह से उठकर इसके करीब आया था। मीरब की कलाई को पकड़कर घुमाते हुए इसकी पुष्ट को अपने सीने से लगा लिया था। मीरब शाह के इस अमल के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मीरब का सांस घुटने लगा था, जैसे इसकी सांसें थम सी गई हो। एक मुद्दत बाद शाह का ये रूप मीरब ने दोबारा देखा था, और इसके दिल की धड़कनें शाह के वजूद के लम्ब से बेकाबू हो गई थी। बोलो, जवाब दो मीरब। क्या तुम्हें मेरे बेकाबू जज्बात दिखाई नहीं देते, या तुम अपने शाह के जज्बातों से गाफिल हो चुकी हो? शाह की आवाज में तल्खी और तपिश थी, जैसे वह अपनी बेचैनी और गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा हो। मीरब की आंखों में इस्तराब और हल्का सा खौफ था, जैसे वो न जाने किस गहरी हकीकत का सामना कर रही हो। शाह, मैं आपको गुस्सा तो नहीं दिलाना चाहती थी, बस मैं तो ये चाहती थी कि रायम हमारे साथ हमारे रूम में सोए। आप जानते हैं मैं इसके लिए फिक्रमंद हूँ। मीरब ने ये अल्फाज अटक अटक कर कहे थे। इसकी आवाज़ में एक अनजानी सी लर्जिश थी, जैसे वो अपने दिल की बात कहने से डर रही हो, मगर फिर भी इसके दिल की गहराई से वो बात निकलकर इसके होंठों तक पहुंच गई थी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं रायम के लिए फिक्रमंद नहीं हूँ? क्या मैं इसे कहीं बेपरवाह होकर छोड़ दूंगा?
जानता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती। जानता हूँ कि तुम्हें लगता है कि राइम की फ़िक्र तुम मुझसे ज़्यादा करती हो, और ये भी जानता हूँ कि राइम एक बार पहले मेरी वजह से तुमसे दूर हो चुका है। और यही बात मेरे अंदर बोझ बनकर बैठ गई है। मैं कभी इस वक़्त को ना भूला हूँ, ना भूलूँगा। ये भी जानता हूँ कि शायद तुम्हें कहीं लगता है कि तुम्हारा शाह अब इस लायक नहीं रहा, तुम दोनों की हिफ़ाज़त कर सके। शाह की आवाज़ में गुस्से के साथ दुःख और जज़्बात की तपिश को साफ़ महसूस किया जा सकता था। इसके लहज़े में कुछ ऐसा था जैसे वो अपनी नीयत और जज़्बात को अल्फ़ाज़ में नहीं ढाल पा रहा हो। इसके लहजे में माज़ी का दुःख था, जैसे वो जानता हो कि कभी इसके फ़ैसलों की वजह से रायन को मुश्किल का सामना करना पड़ा था। गुज़रे हुए वक़्त को वो बेइख्तियार महसूस कर रहा था। बात करते हुए शाह की गर्म साँसें मीरत के मखमली गर्दन को झुलसा रही थीं। गर्म साँसों की शिद्दत अंगारों की तरह मीरत की गर्दन पर बिखर रही थी, जैसे हर साँस इसके गुस्से और जज़्बातों को ज़ाहिर कर रही थी। इसकी गर्दन पर इसकी सांसों का लम्स एक जुनूनी लहर की तरह गुजर रहा था। मीरब को ऐसा लग रहा था जैसे इसका शाह एक मुद्दत के बाद बेकाबू हो रहा है। हर लम्हा इसकी शिद्दत बढ़ती जा रही थी। मीरब आंखें बंद करके अपने शाह की जुनूनियत को महसूस कर रही थी। इस वक्त शाह को सिर्फ मीरब की कुर्बत ही पुरसुकून कर सकती थी। और ये बात मीरब से ज्यादा अच्छी तरह से कोई नहीं समझ सकता था। इस वक्त कोई दलील, कोई वजाहत रोमांचा को पुरसुकून करने में कारामद नहीं हो सकती थी। मीरब मुकम्मल तौर पर खामोश होकर खड़ी हुई थी। शाह थोड़ी मीरब के कंधे पर टिकाए उसके पेट पर दोनों हाथ बांधे सख्ती से अपनी गिरफ्त में लिए खड़ा था। मीरब को अपनी जगह से हिलने की भी इजाजत नहीं थी। शाह अपना सख्त बियर्ड वाला गाल मीरब के नर्म मखमली गाल से रगड़ते हुए सख्त चुभन महसूस करवाते हुए इसे सिसकने पर मजबूर कर रहा था। शाह मीरब पर अपने जज्बातों को ना समझने का गुस्सा निकालना चाहता था, मगर मीरब की कुर्बत और इसका इतना करीब होना शाह के जुनूनी इरादों को नाकाम बना रहा था। शाह की आंखों में एक बेकाबू ख्वाहिश थी जो हर लम्हा बढ़ती जा रही थी। जवाब दोगी या अपनी शिद्दतों से तुम्हारी जान निकालूं? शाह ने एक प्यार भरी धमकी देते हुए मीरब का रुख अपनी जानिब किया। वो दो आंखें बंद किए खामोश खड़ी थी और शाह के हर लम्स को अपने अंदर गहराई से उतार रही थी। शाह के हर लम्स से इसकी वजूद में एक नई तड़प और ख्वाहिश जाग रही थी। इसका रुख अपनी जानिब करते बेख्तियार शाह के अल्फाज गले में दम तोड़ गए थे। मीरब की नरमी से भरपूर पंखुड़ियां शाह के लबों से बिल्कुल सामने थी। रोमान शाह इससे ज्यादा खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकता था। मीरब का इतना करीब होना और शाह को संभाले ऐसा तो किसी किताब में नहीं लिखा था। अपनी जान की कुर्बत एक मुद्दत के बाद इसे नसीब हुई थी। मीरब के पास रहकर भी रोमान शाह ने अपने दायरे और हदूद खुद मुकर्रर की थी। आसान नहीं होता अपने शरीके हयात पर जिस पर आपको हर इख्तियार हासिल हो, इसके पास रहकर भी दूर रहना। मगर इस शहजादे ने इश्क और मोहब्बत की एक नई दास्तान लिख दी थी। इस आशिक ने अपनी बीवी के तंदुरुस्त और सेहतमंद होने का पूरा इंतजार किया था। दुनिया पूरी दुनिया से अलग था रोमांचा का इश्क। इसकी मोहब्बत में जुनून भी है और बेपनाह इज्जत भी। रोमांचा की दीवानगी में इश्क की जला देने वाली तपिश भी मौजूद थी, और इश्क में पागल कर देने वाला जुनून भी था। नरमाहटों और खुशबुओं से भरी मोहब्बत की नरमी भी थी। ये सब चीज़ें मिलकर ही तो रोमांचा के इश्क को सबसे मुनफरिद और अलग बनाती हैं। इसकी मोहब्बत में हर जज्बा और सच्चाई और बेतकल्लुफ़ है। एक तरफ शिद्दत थी तो दूसरी तरफ एहतराम और खलूस भी था। और यही सब चीज़ें थी जो रोमान शाह के इश्क को दूसरों से मुख्तलिफ और ख़ास बनाती थी। ऐसे ही तो नहीं ज़माना रोमान शाह के इश्क की मिसालें देता है। शाह के अंदर जज्बातों का तूफ़ान था, जैसे हर रग में जुनून की लहरें दौड़ रही हों। इस लम्हे में वो बेकाबू हो चुका था। मीरब की कुर्बत ने इसकी अक्ल व शऊर को मगलूब कर लिया था। जाने शाह हमेशा से अपने शाह की कमज़ोरी रही थी। दुनिया के सामने ज़ेर न होने वाला शाह हमेशा मीरब की मोहब्बत में रुई रुई की तरह नरम पड़ जाता था। मीरब के रुखसारों पर भारी और मजबूत हाथ नरमी से रखते हुए शाह ने मीरब की नमी से भरपूर पंखुड़ियों पर पूरी शिद्दत से झुककर इन्हें लबों की कैद में ले लिया। लबों की नरमी का हर कतरा पूरी शिद्दत से हलक में उंडेलते हुए वो मदहोश हो रहा था। मीरब की नरम गरम सांसों को अपनी सांसों में उलझाए हुए खुमारियों के समंदर में डूबता जा रहा था। इस लम्हे में वो पूरी तरह से बेकाबू था, जैसे दुनिया की हर चीज़ महज एक लम्हे के लिए मौकूफ़ हो चुकी हो। शाह की शिद्दत मीरब के होठों पर जलन की सूरत में बिखरने लगी थी। मोहब्बत की शिद्दत में इस कदर बढ़ चुकी थी कि इसके हलक में खून का जायका घुलने लगा। शाह का जुनून और मीरब के लिए बेपनाह मोहब्बत इस लम्हे में पूरी शिद्दत के साथ ज़ाहिर हो रही थी। तड़पती हुई गहरी और उलझी हुई सांसें लेता हुआ शाह जज्बातों की आखिरी हद तक पहुंच चुका था। इस लम्हे शाह पर इसके जज्बात हावी थे। शाह के जज्बात बेकाबू होते हुए मीरब पर भारी पड़ने लगे थे। शाह की हिद्दत भरे लबों की गिरफ्त में इसकी सांसें घुट रही थी। वो एक एक सांस के लिए मचल रही थी। वो सांसों के रवाने घुटने से शाह के कंधों से
शर्ट को मजबूती से जकड़े हुए अपनी सांसों को शाह की सांसों में मुंतकिल कर रही थी। ये लम्हा इतना शिद्दत भरा और जज्बात से लबरेज था कि दोनों की दुनिया जैसे एक वजूद में सिमट रही हो। हर शय इनकी बेकाबू मोहब्बत की गवाही दे रही थी हो। शाह ने मीरब को बच्चों की तरह कमर से पकड़कर उठा लिया था और खुद बेड पर बैठते हुए इसे अपने सांसों से ज्यादा करीब कर लिया। मीरब एक तरफ टांगे लटकाए बैठी थी। इसने नरम बाजू शाह के गले में बांध रखे थे। वो आंखें बंद किए हुए थी, जैसे वो इस लम्हे की शिद्दत को मुकम्मल तौर पर अपने अंदर समो रही हो। शाह के गर्म होठों में मीरब की मखमली पंखुड़ियां अब भी कैद थी और हर लम्स में मोहब्बत की नरम गूंज और जुनून की शिद्दत महसूस हो रही थी। मीरब की सांसें तेज हो रही थी। शाह की सांसों की गहरी आवाज ने इस लम्हे को और भी पुरकशिश बना दिया था। शाह के हाथों की मोहब्बत भरी सख्त बेबाकियां मीरब को तड़पा रही थी। शाह के हर लम्स में जज्बाती तूफान जज्बाती तूफान उठ रहा था। शाह की मजबूत गिरफ्त और इसकी बेकाबू मोहब्बत मीरब के जज्बातों में तूफान बर्पा कर रही थी। शाह ने मीरब को बेड पर नरमी से लिटाते हुए मोहब्बत की बेइंतहा शिद्दत से अपनी चाहत को शिद्दतों की सूरत में बुरा इस शिद्दतों पर इस पर बरसा था। शाह के हर लम्स, हर हरकत में इसकी एक गहरी तपिश थी, जैसे वो अपनी मोहब्बत का हर रंग मीरब पर पूरी तरह बखेर रहा था। इसकी मोहब्बत की बारिश में एक अजीब सी दिलकशी और शिद्दत थी जो मीरब की रूह तक पहुंच रही थी। शाह की मोहब्बत की तेज बारिश में मीरब पूरी तरह से भीग चुकी थी, जैसे हर लम्हा इसकी रूह में गहराई तक जज्ब हो रहा हो। शाह की हर शिद्दत, हर लम्स में एक नई गर्मी और बेखुदी थी जो मीरब को अपने अंदर समोती जा रही थी। वो गहरी सांसें लेती हुई चादर को मुट्ठियों में मजबूती से जकड़े हुए थी, जैसे दो जिस्म एक जान हो चुके थे। शाह की दीवानगी और मोहब्बत से भरी शिद्दतों को बर्दाश्त करते हुए मीरब बिखर कर डाली की तरह शाह के मजबूत सीने पर सर रखे सो चुकी थी। शाह इसके चेहरे पर गहरी मोहब्बत भरी नजरें मरकूज किए हुए उसे अपने मजबूत बाजुओं के में कसे देख रहा था। जान शाह, तो रुमान शाह दी जान है। ਤੂੰ ਤੇ ਗੁਰਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਵਸ ਚਲੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਵਸ ਚਲੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਦੋਂ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਜਨੂਨ ਬਣ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਾਤ आज मेरे अंदर तू ही तू है, मेरा कुछ नहीं। शाह मुस्कुराते हुए सोच रहा था। मीरब के माथे पर लब रखकर शाह ने प्यार भरा लम्हा छोड़ा। एक नर्म मुस्कुराहट शाह के चेहरे पर बिखरी हुई थी, जो इसे जानलेवा हद तक जाज़बे नजर बना रही थी। शाह के पंजाबी वाली अल्फाजों की तशरीह, जाने शाह तुम मेरे जिस्म में दौड़ते हुए खून की रवानी से भी ज्यादा जरूरी हो। अगर मेरा बस चले तो तुम्हें मैं अपने वजूद में कैद कर लूं। अगर मेरा बस चले तो तुम्हें एक पल में एक एक लम्हे के लिए भी खुद से दूर ना होने दूं। मेरी मोहब्बत कब इश्क और जुनून में बदल गई, मुझे खुद भी नहीं पता चला। आज मेरे वजूद में तुम ही तुम हो और मेरा तो कुछ नहीं रहा। थाईलैंड शहर थाईलैंड के शहर फोक्ट दिस स्टोर एट खतानी होटल। रात का गहरा सन्नाटा था। होटल की लॉबी और राहदारियों तकरीबन खाली थी। शाह और मीरब अपने कमरे में बैठे मीठी नींद सो रहे थे। होटल बैरूनी मंजर कुछ ऐसा था कि होटल के कुछ शीशे की दीवारों से समंदर का नज़ारा साफ नजर आ रहा था। मध्यम मध्यम सी रोशनियों में ठंडी हवा का हल्का सा एहसास माहौल को पुरसकून कर रहा था। खुशबू भरे माहौल में होटल की लॉबी की खिड़की से हल्की हवा आ रही थी। रुमान शाह ने मीरब को अपने मजबूत बाजों में समेट रखा था, जैसे दुनिया की सारी परेशानियां दूर हो चुकी हों। शाह की सांसें मीरब को आगोश में लिए पुरसकून थी। मीरब की नर्म सांसें शाह की सांसों से टकरा रही थी। मीरब शाह की गर्दन में सर छुपाए गहरी नींद सो रही थी। मीरब की गर्म सांसों की शाह के कानों में मुसलसल शाह के कानों में गूंज रही थी। कमरे की मध्यम रोशनी में समंदर की लहरों की आवाज और रात के सुकूनत से इस लम्हे को मुकम्मल तौर पर हकीकत में ढाल दिया था। अगर कोई इस मंजर को अपनी आंखों से देख सकता था तो बता सकता था ये मंजर कितना खूबसूरत था, जैसे एक शहजादा अपनी शहजादी को बाहों में लपेटे मीठी और पाकिज़ा सी नींद के मजे लूट रहा था। लेकिन अचानक सुकून की इस फिजा को एक जोरदार दस्तक ने तोड़ दिया था। धड़ धड़ धड़। रुमान शाह ने गुस्से से करवट बदली और नींद से भरी आंखों को मसलते हुए उठकर बैठ गया। धाड़ धाड़ की आवाज एक बार फिर से माहौल को बेजार कर गई थी। कौन है यार? इसने बेजारी से बड़बड़ाते हुए पूछा। मीरब ने नींद में सरगोशी की। देख लें, शायद कोई जरूरी काम से आया हो, इसलिए दरवाजा जोर जोर से बजा रहा है। यू स्लीप पीसफुली, I'll handle it myself, Shah said, gently placing on a kiss, gently placing a kiss on Meerab's cheeks.
तुम आराम से अपनी नींद पूरी करो, मैं खुद देख लूंगा कौन है। शाह ने प्यार से मीरब के गाल पर लबों का लम्स छोड़ते हुए कहा। प्लीज जल्दी आइएगा, नीरज ने नर्म आवाज में कहा। दूर शाह के दूर होने से वो नींद में बेचैन हो रही थी। जी मेरी जान, सो जाओ, अभी आता हूँ। शाह इसके ऊपर कंबल डालते हुए प्यार से बोलते हुए मुस्कुराया। दूसरे लम्हे रोमान शाह ने गुस्से में भरी सुर्ख आंखों के साथ दरवाजे की जानिब देखा। शाह को इस वक्त जहर लग रहा था। वो शख्स जो भी दरवाजे पर आन खड़ा इनकी नींद में खलल डाल चुका था। शाह ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने अलीजे हाथ पेट पर रखे दर्द से कराह रहा था। इसकी शक्ल देखकर रोमान शाह के गुस्से का पैमाना लबरेज हो गया। ये आधी रात को क्या तमाशा है? रोमान शाह ने आहिस्ता आवाज में कुर्राते हुए कहा। इतनी रात के वक्त क्यों हमारी नींद खराब कर रहे हो? शाह, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है थाईलैंड के खाने की कोई चीज बर्दाश्त नहीं हुई। अलीजे ने कराते हुए जवाब दिया। तो हम डॉक्टर हैं क्या? जाके किसी डॉक्टर को जगाओ, रोमान शाह ने तंजिया लहजे में कहा। इसी लम्हे मीरब भी खुद को ब्लैंकेट में कवर करते हुए दरवाजे पर आ गई थी। अलीजे की हालत देखकर वो फिक्रमंद हो गई थी। शाह, ये बेचारा तकलीफ में है, इस पर गुस्सा न करे, तुम जाकर आराम से लेट जाओ। शाह को इस वक्त बिल्कुल मीरब का दरवाजे तक आना पसंद नहीं आया था। बेशक इसने खुद को ऐसे कवर कर रखा था जैसे इसका एक बाल तक भी नजर नहीं आ रहा था, मगर शाह इसको फिर भी रात के इस पहर किसी के सामने मीरब का आना जहर लग रहा था। शाह, प्लीज इसकी हेल्प कर दें, इसको दर्द हो रहा है। रहमदिल मीरब अपने शाह से इल्तिजा कर रही थी। बेचारा, माय फुट, ये रात के वक्त हमें जगाने के लिए कोई और वक्त नहीं ढूंढ सकता था? रोमान शाह ने अपने पुरसुकून लम्हों में खलल डालने और मीरब के इसकी हालत में दरवाजे तक आने से गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए कहा। मीरब भाभी, मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है, शायद मेरी आखिरी रात हो, अलीजे ने दर्द से कराहते हुए कहा। रोमान शाह ने गुस्से से अपनी पेशानी पर हाथ मारा। बस करो, इतने ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा दर्द तुम्हारी शक्ल से नज़र आ रहा है कि तुम्हें कितना दर्द है। फ़िक्र ना करो, तुम अभी बहुत जियोगे, लोगों को ज़लील करने के लिए। रोमान शाह को इस वक्त सिर्फ अलीज़े पर ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि होटल में मेडिकल स्टाफ मौजूद होता है, ये बात अलीज़े भी बहुत अच्छी तरह से जानता था। प्लीज़ शाह, आप दवा लाएँ। हम अगर अगर हम इसको दवा देंगे तो इसको सुकून आ जाएगा, तो अल्लाह ताला हमसे कितना खुश होंगे। मीरब ने अलीज़े को कमरे में आने का इशारा दिया और ज़बरदस्ती शाह का बाजू पकड़कर रूम में लाते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं इसको दवा क्यों क्यों दूँ? मैं कोई थाई का मेडिकल स्टोर हूँ? नुमान शाह ने गुस्से से सुर्ख लाल होते आंखों से अलीजे की जानिब देखा। इस वक्त अलीजे को अपने रूम में शाह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आप जितना गुस्सा कर रहे हैं, लगता है आपके लिए भी दवा लानी पड़ेगी। अलीजा ने दर्द के दरमियान भी शरारत से जनाना सा अंदाज अपनाए हुए कहा। चुप करके बैठो, वरना उठाकर खिड़की से नीचे फेंक दूंगा। नीचे पहुंचने तक दर्द और तुम दोनों ही खत्म हो जाओगे, और दोबारा मुझे शाह मत कहना, वरना हलक से जुबान खींच लूंगा। अलीजा ने चुप करना ही मुनासिब समझा था। रोमान शाह का पारा इस वक्त बहुत हाई हो रहा था, क्योंकि क्यों ना होता, वो तो इस वक्त इसकी इज्जत इसकी बीवी खुद नासाज हालत में कंबल में लिपटे हुए थी, जबकि मीरब के इर्द गिर्द कंबल इतनी अच्छी तरह से लिपटा हुआ था कि अलीजे को तो अंदाजा भी नहीं था कि मीरब किस हालत में है। और दूसरी जानिब अलीजे मीरब की बहुत इज्जत करता था। वो मीरब की जानिब गौर से नजर भर के भी नहीं देख रहा था, मगर इस सब के बावजूद भी रोमान शाह को बर्दाश्त नहीं था कि इसकी बीवी को कोई इस हालत में देखे। ऊपर से इतने खूबसूरत मीठे लम्हे अलीजे की वजह से जाया हो रहे थे। रोमान शाह को गुस्सा ना आता तो और क्या होता। शाह, प्लीज आप अलीजे पर गुस्सा न करें, वो पहले ही दर्द से काफी परेशान है। तुम एक बार इसको जाने तो दो, अगर मैंने तुम्हें भी परेशान न कर दिया तो मेरा नाम भी रोमान शाह नहीं। रोमान शाह मुंह में बड़बड़ाया था। क्या आपने कुछ कहा? मैंने कहा इसको दवा दो और चलता करो, और अगर इसकी तबीयत ज्यादा नासाज है तो फोन कर देता हूँ, अस्पताल में जाकर भर्ती हो जाए। उफ अल्लाह, कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह ना करे अलीजे कभी अस्पताल में भर्ती हो। आप आराम करें, मैं बाहर जाकर देखती हूँ कि मेडिकल स्टाफ मेरी हेल्प कर सकता है या नहीं। वो अदा से कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। ये क्या चीज है? कभी ये था बन जाता है, कभी थी बन जाती है। इसका जेंडर क्या है, मुझे तो यही समझ नहीं आता। रमान शाह गुस्से से देखते हुए बोला। अलीजे अदा से देखता हुआ रूम से जा चुका था। शाह ने रूम का दरवाजा लॉक कर दिया। क्या शाह, आपने अलीजे की मदद नहीं की? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वो बेचारा कितनी दर्द में था। मीरब ने मूड खराब करते हुए कहा। तुम्हें इसकी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, रुमान शाह ने पुरसुकून अंदाज में कहा। होटल ने स्टाफ को हर सहूलत फराहम की है, यहाँ 24 घंटे इलाज की सहूलत मौजूद है। इस वक्त हमारे रूम में आकर डिस्टर्ब करने का कोई तुक नहीं बनता था। शाह ने गहरी निगाहों से मीरब को देखते हुए कहा। तुम सिर्फ मेरी फिक्र किया करो, तुम्हारा इस तरह किसी और के लिए फिक्रमंद होना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारी फिक्र, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी रहमदिली सब कुछ मुझ पर लुटाया करो। मैं इकलौता हकदार हूँ तुम्हारी मोहब्बत का और तुम्हारी रहमदिली का। रोमान शाह की नजरों में वही पुरानी शिद्दत और जुनून था।
जो मीरब को हमेशा से महसूस होता था। इसकी आंखों में एक बेपनाह तसल्लुत था, जिसे वो जैसे वो किसी लम्हे भी अपने हिसार में ले सकता था। मीरब ने बेसाख्ता शाह की तरफ नजरें उठाई। इसके दिल में ये वहम था कि इस एक बेटे का बाप बनकर और इसकी तवील बीमारी के बाद वो बदल चुका है। लेकिन आज इसे रोमांच शाह में वो पहले वाली झलक साफ दिखाई दे रही थी। इसका सारा भरम टूट चुका था। वही पुरानी मोहब्बत, वही पुरानी शिद्दत, वही रोमांच जो कभी नहीं बदलेगा। ये शक्ल के ज़ाविये बाद में बिगाड़ लेना, पहले इधर आओ, अपनी हमदर्दी और मोहब्बत मुझ पर लुटाओ। रोमांचा ने मीरत को मजबूत बाजों में उठाकर बेड पर प्यार से पटकते हुए खुमारी से भरी आंखों से देखा था। इसकी आंखों में कैसी शिद्दत थी कि मीरत को एक लम्हे के लिए अपनी सांसें रोकती हुई महसूस हुई थी। शाह की नज़रों में उतरती हुई खुमारी की लालियां और शाह के तेवर साफ बता रहे थे कि वह इस लम्हे में क्या चाहता है। शाह एक बार फिर से जज्बातों के गहरे जज्बे में डूब चुका था। शाह, जो आप चाहते हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मुझे बहुत नींद आ रही है। शाह के बिगड़ते हुए तेवर देखकर मीरब समझ गई थी कि कुछ लम्हों में शाह इसकी जान अजाब बनाने वाला है। मीरब ने थके हुए लहजे में कंबल खींचकर ऊपर ओढ़ते हुए ऐसे कहा जैसे वो नींद से मरी जा रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। अलीजे की फिक्र करते हुए इसकी नींद तो उड़ चुकी थी, मगर अपने शाह पर वो जाहिर नहीं करना चाहती थी। इसकी नींद पूरी तो हो चुकी है, मगर रोमांच को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं था। वो मीरब की रग रग से वाकिफ था। मीरब सोने की कितनी अच्छी एक्टिंग कर सकती है। शाह ने कंबल को थोड़ी सी छेड़छाड़ करते हुए मीरब के चेहरे से खींच कर उतार दिया था। शाह के इश्तियाल भरी नजरें मीरब के वजूद के आर पार हो रही थी। शाह की नजरों की हरारत मीरब के पूरे वजूद में सनसनाहट की लहरें दौड़ा रही थी। तुम्हारी नींद का बहाना कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? शाह ने खुमारी से देखते हुए नर्म मगर पुरशिद्दत लहजे में कहा। शाह की आंखों में एक ऐसी कशिश थी कि मीरब के दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। वो जानती थी कि रोमांच शाह कभी भी अपनी मोहब्बत और रोमांस की शिद्दत में कमी नहीं आने देता। शाह की शिद्दतों से टूटी हुई मीरब अभी तक खुद को संभाल नहीं पाई थी। ये सख्त जान शाह अपनी शिद्दतों का तूफान लिए मीरब की तरफ बढ़ रहा था। मीरब में इस वक्त सच में हिम्मत नहीं थी। वो एक बार फिर से शाह की मोहब्बत भरी जानलेवा शिद्दतों को बर्दाश्त करे। एक मुद्दत हो गई थी रोमांच शाह की केयरिंग और मोहब्बत को देखते हुए मीरब से शिद्दतें बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। वो जानती थी कि शाह की कुर्बत वो अपनी सारी मजबूती खो देगी। इसका दिल चाहता था कि एक लम्हे बस वो यूं ही रुके और वो शाह की मोहब्बत में मुकम्मल तौर पर डूब जाना चाहती थी। मगर शाह की मोहब्बत, शाह की चाहतों और शिद्दतों, जज्बातों के रंग बहुत गहरे थे। शाह, मेरे ख्याल से रात के इस वक्त नींद का बहाना नहीं किया जाता। सच में लोगों को नींद आ रही होती है। मैं कोई उल्लू थोड़ी हूँ, मीरब ने झुंझलाहट में कहा। लेकिन इसके लहजे में एक नर्म सी मुस्कुराहट छुपी हुई थी। वो किसी भी तरीके से शाह को अपने करीब आने से रोक देना चाहती थी, मगर शाह की मौजूदगी में इसका अपना दिल बागी होकर बेकाबू होने लगा था। वो चाहती थी कि थोड़ी देर के लिए अपने एहसासात को छुपाए, मगर इसके दिल की धड़कनें मुसलसल इसकी सच्चाई बयान कर रही थी। शाह की नज़रें मीरत की अंदरूनी हालत को बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। शाह की शिद्दतों से डर से वो दूर रहना चाहती थी, मगर दिल शाह के करीब जाना चाहता था। मीरब को तो वो अपनी ही कैफियत समझ नहीं आई थी कि वो क्या करना चाहती है। शाह मोहब्बत से देखते हुए इसके करीब हो चुका था। तुम्हारी हर थकन का इलाज सिर्फ मेरी कुर्बत है। तुम्हें सोने नहीं दूंगा। तुम्हें मेरे साथ एक लम्हे गुजारने नहीं, जीने हैं। मीरत के मखमली गाल पर नरमी से लबों की जंबिश के लम्स छोड़ते हुए सरगोशी में कहा, मेरी मोहब्बत, मेरे जज्बात, मेरी शर्तें तुम पर लाजिम है जानिशा। रमान शाह की निगाहें और भी गहरी होने लगी थी। वो जान गया था कि मीरब इसकी शिद्दत से टूटी हुई है। मीरब बहुत नाजुक है, इस बात से रमान शाह गाफिल नहीं था, मगर एक साल से मीरब की बीमारी और इसकी नज़ाकत का ख्याल करते हुए इसने बहुत कड़ा इम्तिहान दिया था। इसे ज़्यादा अपने बेलगाम जज़्बातों को काबू नहीं रख सकता था। जानिशा इसकी मोहब्बत थी, इसका इश्क था, इसका जुनून था, और मोहब्बत में महबूब जले ना, इसको इश्क नहीं कहते। शाह, प्लीज़, अब मोहब्बत के लम्हात में कटौतियाँ नहीं होंगी। बड़ा सा बड़ा तरसा लिया है। ए मैनू तो मैनू उनकी शादी जान लेनी है। सुनिए, मीरब के होंठों पर सख्ती से उंगली जमा के शाह ने फुल स्टॉप लगाया था। मतलब साफ था कि मीरब को कतरा कतरा शाह के इश्क की आग में जलना था। मीरब के गले में रोमांच शाह की शर्ट थी। शाह के हाथ नरमाहट भरी गहराइयों पर सख्तियां उतारते हुए मोहब्बतें बिखेर रहे थे। शाह के लब मीरब की गर्दन को गर्म अंगारों की तरह जला रहे थे। शाह की गहरी नजरें और नरम गरम लबों की हरकतों से मीरब के जिस्म में सनसनाहट की लहर दौड़ती जा रही थी। मीरब की सांसें तेज होकर उखड़ने लगी थी। वो जानती थी कि शाह का हर लम्स मोहब्बत, सिर्फ मोहब्बत की शिद्दत से नहीं, बल्कि इसकी ख्वाहिश की जुबान से भी गुजर रहा है। एक बार फिर दोनों के जज्बातों और गहराइयों में डूब चुके थे। शाह के गर्म लबों की जंबिश इसके वजूद में अंगारों की तरह आग भर रहे थे। मीरब की सांसें बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी। शाह की शिद्दतों से मचलते हुए वो सिसकियां ले रही थी। फिजाओं में रोमांचा की मोहब्बत की महक बिखरी हुई थी। इसकी गुर्बत का वक्त का धार रुका हुआ था।
मीरत के दिल की धड़कनें शाह की मोहब्बत की शिद्दत में मद्धम हो गई थी। शाह के हर लम्स में एक दास्तान छुपी हुई थी जिसे दोनों के दरमियान इस लम्हे की कोई इंतहा न हो। तुझ विच सजी है हर रंग दी खुशबू, मेरे दिल दी धड़कन भी तेरी हो गई है। चांदनी रातां विच तेरे होण दा एहसास, मेरी वजूद दी हर खामोशी विच तेरी आवाज हो गई है। रमान शाह ने सरगोशी करते हुए पंजाबी में एक शेर कहा तो मीरा मुस्कुराते हुए शाह के सीने में सर छुपा गई थी। शाह ने मुस्कुराते हुए शर्माई हुई मीरब को अपने मजबूत बाजुओं का तहफ़्फ़ुज़ देते हुए लम्हों को कैद कर लिया था। सच कहते हैं, शौहर की कुर्बत में सुकून है। जहाँ हलाल रिश्ता होता है, वहाँ खुदा की रहमतें बरसती हैं। शाहमीर और मिल्हा सवात पहुंच चुके थे। इनका सफर इनकी सोच से कहीं ज्यादा खूबसूरती के साथ गुजरा था। शाहमीर और मिल्हा मैंगोरा के एक मशहूर होटल पर सेंट्रल होटल रुके हुए थे। मैंगोरा सवात का दिल कहलाता है और ये खूबसूरत शहर कुदरती मनाजर और पुरसकून फिजाओं से माला माल है। मैंगोरा की सरसब्ज वादियाँ, बुलंद पहाड़ियाँ और बहते हुए चश्मे कुदरत की खूबसूरती का नादर शाहकार है। मैंगोरा का मंजर दिन भर में बदलता रहता है। जहाँ दिन की रोशनी में पहाड़ों की सरसब्जी और दरख्तों के साए एक दिलकश मंजर पेश करते हैं, वहीं रात को आसमान पर छाई हुई चांदनी पहाड़ों के साए में हर एक पुरस्कार खूबसूरती पैदा कर देती है। शाहमीर और मिन्हा मैंगोरा पहुंच चुके थे। शाहमीर ने अभी अपना चार्ज नहीं संभाला था, इसलिए इसने सोचा क्यों ना को मैंगोरा के कुछ खूबसूरत मकामात की सैर करवाई जाए। मिन्हा भी बहुत एक्साइटेड थी सवात के शहर में मैंगोरा की असीर सैर करने के लिए। इसने सुना हुआ था कि मिंगोरा में बहुत खूबसूरत सरसब्ज वादियां और चश्मे हैं। मिरहा को बहुत शौक था देखने का। आज शाहमीर ने इसके इस ख्वाब को सच्चा कर दिया था। मिंगोरा शहर की फिजा में सरसब्जी का गलबा था। एक हल्की हवा दोनों के चेहरों पर मध्यम सी लहर पैदा कर रही थी। दिसंबर के महीने में मैंगोरा में बहुत शदीद ठंड होती है। शाहमीर और मिरहा ने पूरी तरह से गर्म कपड़ों में खुद को कवर कर रखा था। इसके बावजूद भी ठंड का एहसास इनके वजूद पर अपना असर छोड़ रहा था। मिंगोरा के आसपास के इलाकों में कुदरती चश्मे बह रहे थे और बुलंद पहाड़ों की अजमत कुदरत के हसीन मंजर को मजीद दिलकश बना रही थी। हर तरफ सब्जा और ठंडी हवा का झोंका फिजा को खुशगवार बना रहा था, जैसे ये जमीन और आसमान का हसीन इम्तिजाज हो। मिठा यहाँ पर आकर सच में इंसान खुद को कुदरत के करीब महसूस करता है। फिजाओं में कितना सुकून है, ना यहाँ किसी तरह का शोर है, ना शहर की गाड़ियों की आलूदगी। शाहमीर ने मिरहा का हाथ मजबूती और मोहब्बत से पकड़ रखा था। ये जगह वाकई जन्नत से कम नहीं। यहाँ के चश्मे, पहाड़, दरख्त, हर चीज़ बहुत खूबसूरत है। यहाँ हर तरफ सुकून ही सुकून है। मिरहा ने आसपास फैली खूबसूरती को पूरे दिल से महसूस करते हुए गहरी सांस लेते हुए कहा। गहरी सांस लेते हुए साफ सुथरी हवा इसकी सांसों के अंदर तक उतरती हुई महसूस हो रही थी, जिसमें ना कोई गर्द व गुबार था और ना ही ऑक्सीजन की कमी। मेरा तुम्हें पता है जगह ना सिर्फ कुदरती खूबसूरती से भरी हुई है, बल्कि यहाँ के लोग भी दिल के बड़े हैं। शाहमीर मिरहा को यहाँ की हर चीज़ के बारे में बहुत खूबसूरती से बता रहा था। मिरहा को बहुत अच्छा लग रहा था शाहमीर का हर चीज़ के बारे में डिटेल से बताना। दोनों एक कुदरती चश्मे के करीब पहुंचे जहाँ पानी का ठंडा और साफ जरियान खुशबू के साथ बह रहा था। शाहमीर और मिरहा ने इस पानी में हाथ डाले। पानी ठंड के मौसम में गर्म गर्म बह रहा था। सच में ये कुदरत का एक करिश्मा है। इतने ठंडे मौसम में कितना गर्म पानी है। मिन्हा ने मुस्कुराते हुए शाहमीर से कहा, हमारा पाकिस्तान वाकई कुदरती हुस्न का शाहकार है। बर्फ से ढके पहाड़, सरसब्ज वादियां, बहते चश्मे, मचाते दरिया, सुनहरे मैदान और पुरसुकून झीलें इसकी खूबसूरती को बेमिसाल बना देती हैं। शुमारी इलाकों की दिलकश वादियां, बलोचिस्तान के सहराओं की खूब खामोशी, सिंध के समुद्री साहिल और पंजाब की जरखेज मैदान सब मिलकर पाकिस्तान को एक जन्नत नज़ीर मुल्क बनाते हैं। यहाँ की बदलती रातें, महकती हवाएं और हर मौसम के मुनफरिद रंग दिल को ऐसा सुकून देते हैं कि इसकी खूबसूरती बयान करने लगे तो वाकई अल्फाज कम पड़ जाते हैं। दोनों यहाँ की वादियों में गुम होकर बहुत सी प्यारी यादें इकट्ठी कर रहे थे। मीर, जी मीर की जान, मुझे भूख लगी है। शाहमीर ने मिर्हा की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। मेरी जान को भूख लगी है? हाँ, बहुत ज्यादा। चलो मैं अपनी जान को गर्मा गर्म खाना खिलाता हूँ। आज हम पर कॉन्टिनेंटल होटल में मैंगोरा चलते हैं। वहाँ की मटन कढ़ाई और चिकन हांडी बहुत मशहूर है। साथ में इसका स्पेशल पश्तो यखनी सूप और कश्मीरी चाय भी ले लेंगे। तुम्हें यकीनन पसंद आएंगे। वाह, खाने का सुनकर तो भूख और भी बढ़ गई है। मीरा ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम एक बार खाना तो खाओ, तुम हमेशा यहाँ आकर खाने की फरमाइश ना करो तो फिर कहना। शाहमीर मिन्हा का हाथ पकड़ के चलते हुए चटखारे लेकर बता रहा था। शाहमीर यहाँ पर बहुत बार आ चुका था और यहाँ के खाने, रास्तों और खूबसूरती से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ था। मीर मुझे मीठे में कुछ खाना है।
ओके, हम साथ में कुछ देसी स्वीट डिशेस भी ले लेंगे, जैसे गरम गरम गुलाब जामुन या रसमलाई। शाहमीर ने इस बात में सर हिलाते हुए बहुत प्यार से कहा था। ओके, थैंक यू। मिरा ने प्यार से शाहमीर के हाथ को दबाते हुए खुशी से कहा। थैंक यू की जगह अगर लव यू कहोगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। वो भी कह दूंगी आपको, सिवाय आई लव यू के और कुछ समझ में नहीं आता ना। ये तो तुम्हें होटल के रूम में चलकर बताऊंगा कि मुझे क्या समझ में आता है और क्या नहीं। शाहमीर ने शरारत से कहते हुए आंख दबाई तो मिरा शर्माकर इसके पास के मंजर पर नजर मरकूज किए हुए हंस पड़ी थी। रोमांच अपनी प्यारी छोटी सी फैमिली को आज थाईलैंड के मशहूर कैफे में नाश्ता करवाने लाया था। रोमांच यहाँ पर इनकी वो खूबसूरत से भी खूबसूरत लम्हे फराहम करना चाहता था, ताकि गुजरी हुई गुज़श्ता दिनों की तल्ख़ यादें इन खुशी भरे लम्हों में दबकर रह जाएँ। आज दिसंबर आज 10 दिसंबर की सर्द सुबह थी। निम्न हिमन के आउटडोर कैफ़े में सर्द हवाओं हल्के-हल्के चल रहे थे। हल्की-हल्की चल रही थी और धूप के साथ-साथ गर्म कॉफ़ी की खुशबू पूरे माहौल में फैली हुई थी। आज आस-पास के पहाड़ों पर हल्की-हल्की धुंध छाई हुई थी। सामने मेज़ पर नाश्ते के लवाजमात सजे हुए थे। इतने खूबसूरत और रोमांटिक माहौल में रोमांच को मीरा पर बहुत प्यार आ रहा था। प्यार और मोहब्बत में डूबी हुई गुज़श्ता रातें गुज़ारने के बावजूद भी शाह का दिल भरा नहीं था। शाह ने राइम और अलीज़े की नज़रों से बचते हुए बड़ी सफाई के साथ अपनी खूबसूरत दिलकश चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट सजाए मीरत की तरफ झुका और चादर की ओट में अपने मजबूत हाथ से नरमी से मीरब का हाथ सख्ती से थाम लिया था। मीरब का दिल बेसाख्ता धड़कने लगा। इसने फौरन नसें झुका ली। इसके चेहरे पर शर्म का इम्तिजाज था। शाह के सख्त हाथ की गिरफ्त इसके जज्बात में एक हलचल मचा दी थी। शाह प्लीज, मीरब ने सख्ती से सरगोशी की, लेकिन उसकी आवाज में शर्म और अपने बेटे की झिझक की लर्जिश थी। जाने शाह प्लीज, शाह ने इसकी नकल उतरते हुए शरारत से कहा और चादर के नीचे अपने लम्स को मजीद मजबूत कर दिया। इसके लबों पर एक शौक मुस्कुराहट थी, जैसे वो खूब जानता था। जानता हो कि मीरब को कैसे अपनी जानिब मतवज्जा करना है। मीरब ने घूरकर शाह की जानिब देखा। शाह, आप प्लीज सुधर जाएं। राइम और अलीजे देख लेंगे। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जाने शाह ने मासूमियत से कहा। अलीजे राइम के साथ गप्पे मारते हुए जो काफी कॉफी की चुस्कियां ले रहा था। अलीजे और राइम पूरी तरह से गाफिल थे कि टेबल पर नजरों के तीर बरसाए जा रहे हैं। मीरब का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। मीरब ने शाह की तरफ सख्त निगाहों से देखा, जो बेहद सुकून के साथ नाश्ता कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सर्दियों की नरम धूप और शाह की शरारतों ने इस लम्हे को मीरब के लिए यादगार बना दिया था और वह दिल में मुस्कुराए बगैर न रह सकी थी। शाह के हाथ की सख्ती मीरब सिसक उठी थी और वह बड़ी मुश्किल से अपनी सिसकी को रोके हुए थी, ताकि कहीं राइम और अलीजे न सुन ले। इसका दिल धड़क रहा था और वो जानती थी कि इस लम्हे की शिद्दत को छुपाना जरूरी था, ताकि मोहब्बत भरी कुर्बत का अंदाजा ना हो। शाह की हरकत में इतनी शिद्दत थी कि मीरब के जिस्म में एक लहर सी दौड़ गई थी। मगर इसने अपने जज्बात को काबू में रखने की पूरी कोशिश की, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी इनके दरमियान होने वाली इस खास बात का अंदाजा हो। मीरब ने घूर कर दांतों को पीसते हुए शाह की जानिब देखा तो शाह ने इस आंख को दबाते हुए अपने जज्बात का इजहार किया था। शाह के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत लग रही थी। मीरब शाह पर गुस्सा था, मगर शाह था ही इतना खूबसूरत और दिलकश कि मीरब जितनी बार शाह को देखती अपना दिल हार जाती थी। इस वक्त भी यही हुआ था। शाह की शरारती मुस्कुराहट और नरम नजरों में एक खास जाज़ियत थी, जिसे मीरब अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद नजरअंदाज नहीं कर पाती थी। नुमान शाह को इस लम्हे में मीरब को मोहब्बत से अपनी दस्तरस में लेना था, और दस्तरस में लेने के लिए यहाँ से उठना बेहद ज़रूरी था। बहुत से कीमती लम्हे इनकी ज़िंदगी में से ज़ाया हो गए थे। अब वो अपने हर लम्हे को खूबसूरत से खूबसूरत बनाना चाहता था। वो जानता था कि ये लम्हा अगर ज़ाया हो गया तो दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इस सफ़र के हर खूबसूरत लम्हे को वो यादों में कैद करके हमेशा के लिए रखना चाहता था। शाह की गहरी नज़रें मीरत के शर्माए हुए चेहरे पर जमी हुई थी। शाह के दिल में शदीद ख्वाहिश थी कि वो इस वक्त मीरत के बेहद करीब हो जाए। रोमान शाह को जिस वक्त में मीरब की गुर्बत का जुनून तारी होता था, तो रोमान शाह के लिए किसी भी जगह मीरब को अपने दस्तरस में लेना मुश्किल नहीं होता था। इस वक्त इसे मीरब को अपने बाजुओं के मजबूत घेरे में लेकर गुर्बत का एहसास दिलाना था, तो बस इस फैसले में कि आगे और कोई रास्ता नहीं था। शाह ने आहिस्ता से अपनी जगह से उठने की तैयारी की। इसका इरादा था कि वो मीरब को एक अलग और महफूज जगह ले जाए, जहां वो दोनों बगैर किसी रुकावट के अपने जज्बात का इजहार कर सके। वो जानता था कि मीरब के दिल की धड़कन को थोड़ा तेज करना इसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। बस इसे इसके करीब जाने की ज़रूरत थी। आखिर ये लम्हा इनका था। मीरब अपने शाह के करीब और इनकी धड़कनें बेतरतीब होकर शोर न मचाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता था।
शाह मीरब की कमजोरी है, इस बात से शाह बहुत अच्छी तरह से वाकिफ था। वो जानता था जब भी वो और मीरब इसके करीब होता था, इसकी धड़कन तेज हो जाती थी और खुद को वो इसकी मौजूदगी में मुकम्मल महसूस करती है। और वह ये भी जानता था कि मीरब का वक्ती गुस्सा इसके करीब होने से फौरन खत्म हो जाता है। रुमान शाह मीरब का हाथ थाम कर उठते हुए राइम से बोला, मैं ज़रा स्टाफ से पूछता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी खूबसूरत जगह हैं जहाँ पर आप लोगों को घुमाया जा सकता है। शाह की बातों से एक खास मुस्कुराहट छुपी हुई थी। मीरब की नजरें शाह से शरारती चेहरे पर मरकूज थी। अस्तगफिरुल्लाह शाह, जब अपनी दिल की हसरतों को पूरा करने के बावजूद में सोच लेते हैं कि खुदा की पनाह, पता नहीं कहाँ से इन्हें बहानों के आइडियाज आ जाते हैं। मीरब दिमाग में सोचकर रह गई थी। शाह की आदत थी जब वो मीरब पर दस्तरस हासिल करना चाहता था तो वो हमेशा किसी न किसी बहाने अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर लेता था। जी बाबा, जल्दी से आप पूछें कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर बहुत से झूले हैं। रान ने एक्साइटेड होते अपने बाबा से कहा। वो नाश्ता करने में मशगूल था। इसकी आंखों में चमक थी, जैसे वो किसी और दिलचस्प मकाम के बारे में सोच रहा हो। जी, मैं अभी आपके मामा के साथ स्टाफ से पूछ कर आता हूँ। शाह ने अपने बेटे को प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा। शाह को इस लम्हे में अपने बेटे पर बहुत प्यार आ रहा था, क्योंकि वो अपने बाबा के बेलगाम जज्बातों में खलल पैदा न करते हुए आराम से बात मान चुका था। अलीजे, जी, अलीजे ने अपने जनाना अंदाज में जवाब दिया। राइम का ख्याल रखना, एक सेकंड के लिए भी राइम से तुम्हारी नजरें हटनी नहीं चाहिए। मत भूलना कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, रमान शाह ने सख्त अंदाज में कहा। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं 24 घंटे राइम पर नजर रखूंगा। वैसे भी आप जाएं, आपके खूबसूरत वक्त में खलल पड़ रहा है। राइम तो बच्चा था, मगर अलीजे की शरारती नजरें कुछ कुछ शाह के इरादों को समझ चुकी थी। वो जानता था कि रुमान शाह का अंदाज हमेशा बेतकल्लुफ और दिलकश होता है। शाह की आंखों में एक खास चमक थी, जिसमें मीरब की मोहब्बत के रंग बहुत गहरे थे। सामने खड़ा शख्स अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत करता है, ये बताने की किसी को जरूरत नहीं थी। अब तो अली से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ था कि शाह को सिर्फ बहाना चाहिए होता है। मीरब के साथ वक्त गुजारने का अलीजे की शरारती मुस्कुराहट ने इस लम्हे को मजीद दिलचस्प बना दिया था। शताब अलीजे, अपने काम से काम रखा करो। रोमान शाह ने सपाट और गुस्से से भरी हुई निगाहों से इसे देखते हुए कहा। रोमान शाह को इस तरह की किसी का बेतकल्लुफ मजाक करना बिल्कुल पसंद नहीं था। अलीजे पर कौन सा शाह की बातों को और गुस्से का असर होता था। वो मुंह बसोड़ते हुए जनाना अंदाज में खामोश होकर बैठ गया था। अलीज़ा एक ट्रांसजेंडर था, इसलिए रोमान शाह को कभी कभी इस पर रहम भी आ जाता था। मगर रोमान शाह का लबो लहजा ऐसा ही था, वो किसी से फ्री नहीं हो सकता था। इसकी संजीदा पर्सनैलिटी ही तो इसे जाज़बे नजर बनाती थी। अलीज़ा खामोश हो गया, जैसे रोमान शाह के साथ बातों ने इसे अपनी जगह साबित कर दिया हो। वो जानता था कि शाह का अंदाज हमेशा इतना संजीदा और गैर लचकदार होता है कि मगर शाह दिल का इंतहाई अच्छा है। इस बात से रोमान शाह का पूरा स्टाफ वाकिफ था। अलीज़े ने चुपचाप सर झुकाया और अपनी नजरें नीचे कर ली, जैसे वो जानता हो कि अब मजीद बात करना फजूल होगा। और हमेशा अपनी शरारतों के बावजूद रोमान शाह की मजबूत शख्सियत का एहतराम करता, क्योंकि वो जानता था कि यही वो चीज़ है जो शाह को इतना दिलकश और मुनफरद बनाती है। रोमान शाह मीरब का हाथ नरमी से पकड़े हुए थाईलैंड के कैफे के इस खूबसूरत कोने में ले आया था। यहाँ मुकम्मल प्राइवेसी थी। रूम की नरम रोशनी में हल्की सी थाई मौसीकी की धुन फिजा में रक्स कर रही थी, जो माहौल को और भी रोमांचक बना रही थी। दोनों ने नजरें एक दूसरे में डूबी हुई थी और हर लम्हा जैसे इनके लिए मखसूस था, जहां वो अपने जज्बात का इजहार बेखौफ और बेपरवाह होकर कर सकते थे। शाह ने मीरत की कमर में हाथ रखते हुए प्यार से इसे अपने करीब किया था। शाह के जिस्म से आने वाली खुशबू मीरत की सांसों में बसते हुए इसकी धड़कनों को बेतरतीब कर रही थी। शाह, आप बिल्कुल पहले जैसे होते जा रहे हैं। आप तो कब अब तो आपको सुधर जाना चाहिए, मीरब ने शाह के जज्बातों को देखते हुए घबरा कर कहा। शाह की नजरों में उमड़ते जज्बातों की शिद्दत मीरब को बखूबी समझ में आ रही थी। शाह के सीने पर हाथ रखकर दबाव देते हुए इसने थोड़ा सा फासला बनाया था। शाह की आंखों में बेकरारी शिद्दत से ज्यादा थी। तुम्हें तो मुझसे दूर होना ही नहीं चाहिए। जानशाह, बहुत वक्त एक दूसरे से दूर रह लिया, अब और गुंजाइश नहीं है। मैं अपने गुजरे हुए हर लम्हे का बराबर हिसाब लेना जानता हूँ। बिजनेसमैन हूँ, अपना फायदा और नुकसान कभी नहीं भूलता। गुजरे वक्त में मेरी मोहब्बत का बहुत नुकसान हो गया है। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए मेरी जान को मेरे करीब तो रहना पड़ेगा। शाह की नजरों में जज्बातों का तूफान था। आप एक बेटे के बाप हैं, ये मत भूले, मीरब ने शरारती नजरों से देखते हुए कहा। इसकी आवाज में एक नरम सी कशिश थी। मैं हमेशा आपके साथ और आपके पास रहूंगी, मगर अब एक बेटे के बाप बनकर आपको थोड़ा सा सुधर जाना चाहिए। मेरी जान, ये क्या क्या चाहती हो कि एक बेटे का बाप बनकर मैं बूढ़ा हो गया हूँ? शाह ने इसे अपने मजबूत बाजुओं में जकड़ते हुए नरमी से कहा। उसने मखमली गर्दन पर एक गहरा लम्स छोड़ते हुए उसे सकने पर मजबूर किया था। शाह के गर्म लबों का लम्स मीरब की मखमली गर्दन को दहकते हुए अंगारों की तरह महसूस हो रहा था। मीरब का दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
और इसके लबों पर एक नरम मुस्कुराहट फैल गई थी। मीरब अपनी धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी, मगर शाह की कुर्बत और शाह की मौजूदगी से इसे बेकाबू कर रही थी। शाह, ये हमारा रूम नहीं है, जज्बात पर लगाम डालिए। नीरव ने शाह के कंधों पर हाथ रखते हुए सरगोशी में कहा था। इसके चेहरे पर एक नरम सी शर्माई मुस्कुराहट फैली हुई थी। वो दोनों एक दूसरे के करीब थे और शाह की नरम आगोश में मीरब की धड़कनें तेज हो चुकी थी। कैफे का ये हिस्सा पुरसकून और एक कपल के लिए बिल्कुल सेफ था। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी धुन पर हिल रही थी। एक नज़र देखने वालों को ऐसा महसूस हो सकता था कि दोनों थाई के रोमांटिक म्यूजिक पर ड्रग्स कर रहे थे, मगर हकीकत में वो सिर्फ एक दूसरे की कुर्बत में महू थे। रोमांच अपनी बीवी को कभी ऐसी गैर महफूज जगह में अपनी दस्तरस में नहीं लाएगा जहां इसकी इज्जत और एहतराम की हिफाजत ना हो सके। शाह हमेशा अपनी जान शाह की हिफाजत की अवलीन तरजीह देता है और इस बात का ख्याल रखता है कि वो जहां भी जाए वहां इसकी वक़ार और इज्जत को बरकरार रखा जाए।